I am going to discuss about archival sources. This is one of the most vital source to know about the history, especially the modern Indian history. अभिलेखागारीय उपादान जहाँ को कहा जाए ता विषय रे मु आज आलोचना करने को जाउछि. आमर विभिन्न प्रकार उत्स रही. देयर आर सो मेनी सोर्सेस which helps us to write history. Archival sources is one of the most vital source, and this source helps us to write about our history, and we know much more about the British rule, about the modern period of Indian history through these sources. So, archival sources is divided into three parts: government records, personal letters, and newspapers and periodicals. So, archival source which is a very important feature in the compilation of modern Indian history. जदि आमे अभिलेखागारीय उपादान विषय आलोचना करिबा तले आधुनिक भारतीय इतिहास जहाँ को कि आमे कहू ब्रिटिश पीरियड से समय विभिन्न विवरणी आमको यही उत्सरू ही मिली थाए. दिस सोर्स प्रोवाइड्स अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग द मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, regarding the administrative system of the Britishers, and the treaties about the ruling period of the kings during that period. So, what is an archival source? जदि आमे कहबा ताले अभिलेखागारीय उत्स कोन? Archives provides materials for writing history. So, it is called as archival source. Archives is a storehouse of old official records, correspondences, private papers, documents, periodicals, palm leaf writings, etc. preserved for future references. तो पूर्वर जो तालपत्र पोथी सब लेखा जाइछि, जेते सबो प्राइवेट पेपर्स रही स्वाधीनता संग्रामी मानकर हो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल मानकर हो प्राइवेट लेटर सब रही ताहा सब मध्य आमको बहुत तथ्य प्रदान करि थाए इतिहास लेखिबा पई. सेही समयर समसामयिक घटना गुडी को आमे सेहिथिरो ही पाई थाउ. सो आर्काइव्स इज अ स्पेशल कलेक्शंस लाइब्रेरी. आको आमे स्पेशल कलेक्शंस लाइब्रेरी बोली कहि थाउ. दो इट इज ए लाइब्रेरी बट इट हैज स्पेशल कलेक्शंस और अदर रिपोजिटरी. आर्काइवल सोर्सेस कैन बी मैन्युस्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, records including electronic records, objects, sound and audio visual materials or other materials. The National Archives of India is the custodian of the records of enduring value of the government of India. विभिन्न प्रदेश गुड़िकरे आर्काइव्स सब रही. National Archives and State Archives. There are so many archives in India which reserves so many manuscripts, which is one of the most vital source because it is one of the primary source. तो प्राथमिक उच्च आम इतिहास लेखनर प्राथमिक उच्च भली याको ग्रहण करिबा. And it's one of the most authentic source. यह होची सबठार authentic source. It was established on 11th March 1891 at Calcutta. So, National Archives प्रथमे कोलकाता ठारे प्रतिष्ठा करा जाइथिला 11 मार्च 1891 मसीह as the Imperial Record Department. Imperial Record Department नाम रे एहा को प्रतिष्ठा करा जाइथिला. And it is the biggest
आर्काइवाल रिपोजिटरी इन साउथ एशिया दक्षिण एशियार सर्वबृहत अभिलेखागार कहले आमर भारतीय अभिलेखा नेशनल आर्काइव्स को ही बुझाए। तो आर्काइव्स कंटेन्स प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स that have accumulated over the course of an individual or organization's lifetime and are kept to show the function of that person or organization. For example, the life history of Subhash Chandra Bose and other freedom fighters, it is accessible to us only due to the archival sources. Archival sources personal letters, personal papers, diary, important persons मानकर जो डायरी रही से आमे बहुत तथ्य पाई था जहाँकि आमर जातीय घटनावली विषय आमको सम्यक सूचना प्रदान करि थाए। राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं विभिन्न प्रकार घटनावली से समय घटनावली सबू से स्थानित होता है। तो आर्काइव्स हेउची आमर प्राथमिक उत्स जहाँ आमको बहुत तथ्य प्रदान करि थाए। तो प्राइमरी एम ऑफ आर्काइवल सोर्सेस इज टू मेक द सिस्टम ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल। इतिहास लेखिबा एक कष्टसाध्य व्यापार, बहुत सरल कही हेबनी। तो यह को एक्यूरेट एवं रिलायबल करिबा पई आर्काइवल सोर्सेस मुख्य भूमिका ग्रहण करि थाए। So आर्काइवल सोर्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स। यह को 3 भाग रे विभक्त करा जाय। अभिलेखागारी उपादान को 3 भाग रे विभक्त करा जाय। तो फर्स्ट इज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो प्रथम श्रेणी जहाँ को आम कह फर्स्ट कैटेगरी इज द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बा सरकार विभिन्न सरकारी स्तर रे जो तथ्य को गच्छित कर रखा जाइछि। सेकेंड इज द प्राइवेट एंड पर्सनल पेपर्स। थर्ड इज द न्यूज पेपर्स एंड पीरियडिकल्स। विभिन्न व्यक्तिगत चिठीपत्र, व्यक्तिगत तथ्य सबू बा डायरी हेउ कि पर्सनल पेपर्स हेउ, व्यक्तिगत कागजपत्र जहाँकि आमको बहुत किसी तथ्य प्रदान करि थाए, इतिहास लेखन रे सहायक होई थाए। एवं न्यूज पेपर्स बा संवादपत्र एवं पीरियडिकल्स यह मध्य हमको इतिहास लेखारे सहायक होता है। ऐतिहासिक माने आर्काइव्स अभिलेखागारी उपादान को बहुत गुरुत्वर सहित ग्रहण करि थांती एवं यह हेउची हमर इतिहास लिखनर एक रिलायबल सबुठ विश्वसनीय उत्स। So first of all we are going to discuss about the government records बा सरकारी स्तर रे जो सब तथ्य रही। The foundation of English rule in India was laid after the Battle of Plassey। नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करिबा परे पलासी युद्ध रे तापरे भारत रे इंग्रेज माने तांकर शासन प्रतिष्ठा करिथिले। धीरे धीरे इंग्रेज माने भारतर प्रत्येक प्रदेश रे सेमानकर शासन प्रतिष्ठा कले। इन ड्यू कोर्स द होल ऑफ इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश रूल। इंग्रेज मानकर शासनाधीन है, संपूर्ण भारत वर्ष इंग्रेज मानकर शासनाधीन है। दे बिकेम द सवरेन्स एंड दे एस्टाब्लिश देयर रूल, दे इंट्रोड्यूस देयर रूल। देन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द पीरियड सच एज ट्रीटीज, डिक्लेरेशंस, then secret documents, accounts, etc. have been effectively preserved in national as well as various state archives of the country। तो इंग्रेज मानकर शासन समय को आम 2 भाग विभक्त करि थाउ। वन इज कॉलोनियल पीरियड एंड अनदर इज द ब्रिटिश इंपेरियल रूल। फ्रॉम 1757 to 1857 is the period when the English East India Company ruled over India, and from 1857 till 1900 till the achievement of independence, British imperial rule was existing in India. During that period, there are so many treaties signed between the kings and the British colonial
government, and we know about the relationship of the Britishers with the Indian native rulers, and the secret documents like the treaties the signed between the Britishers and the Indian native rulers. So, various state archives of India, they have reserved all these documents. So, government records are of various types. सरकार का जो सब तथ्य रही बहुत प्रकार रही. An archives is the treasury of all official letters. जेते सबू सरकारी स्तरीय जेते सबू चिठी रही से समय चिठी सबू ताहाको आर्काइव्स रे ही केवल पाई हेबो आर्काइव्स रे से सबू मिली पारिबो. देन कोर्ट एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जेते सबू रेवेन्यू सिस्टम थिला ब्रिटिश सरकार कर परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम हो रायतवारी सिस्टम महालवारी सिस्टम. These are the revenue systems introduced by the British government in order to raise more and more revenue collections during that period. Then foreign proceedings, war office records, secret police records, home political proceedings, sale deeds and other records. These are the various types of government records which are available in archives. In national archives and in state level archives, we can found such a type of materials in order to write authentic and reliable history, especially the modern history, modern Indian history. So, all the official letters reveal different steps of the British officer in India and their secret plans. So, these papers also reveal their relation with Indian kings and rulers. The Britishers, they played a very vital role in the drain of wealth, which Dadabhai Naoroji, he popularized the theory of drain of wealth theory. The Britishers took away the wealth of India. So, all the official letters, they reveal different steps of the British officer in India. So, we found from the archives several types of letters, especially the government letters. Then the sale deeds and records are very important among the sources. Archives is the primary source and the sale deeds and records, they are very important among the sources. So, the purchase and sale of different kinds of archival properties, various treaties and agreements have been collected in several archives. So, in India, we can collect different types of historical materials from these archives. So, archives helps a lot to write one of the most authentic and reliable history through the government records. Then the courts and revenue records, they are very important. The court records throw light on judicial proceedings, penal code, judgment etc. तो सही समय रे इंग्रेज मानकर जो न्यायिक व्यवस्था थिला से मानकर जो दंडविधि आईन थिला से माने भारतीय मानक जो भाव में शोषण करुले अत्याचार करुले से सबु विषय रे विश्वसनीय तथ्य आमको केवल आर्काइव्स रु अभिलेखागार रु ही मिल पारिबो एवं से समय जो विचार विभाग व्यवस्था थिला ताहा मध्य आर्काइव्स रु ही प्राप्त करि पारिबो. The revenue records disclose the amount of revenue collected by that time, the mode of collection, sale and purchase of land etc. Though the revenue records
they show different types of records. They are not reliable. Many false records are also reserved in the archives. So, the revenue records, they disclose the amount of revenue which are collected by the Britishers. The Britishers, they wanted to raise wealth by imposing heavy taxes on Indians, the Jamindari system, Mahalwari system and Raitwari system. In eastern India and specifically the western India, northern India, there are several types of revenue collection policies introduced by the government, the British government. So, the people, they were oppressed by the British government, and this can be known from the archival source. Then the Britishers, they also introduced several policies for the sale and purchase of land during that period. So, all the records, the revenue records, they disclose the policies followed by the Britishers during that period from the only from one source, that is archival source. Then we are going to discuss about the private and personal papers. These papers are equally relevant as government records. सरकारी स्तरीय कागजपत्र बा तथ्य जेतिकी गुरुत्वपूर्ण, प्राइवेट एवं पर्सनल पेपर्स बा व्यक्तिगत कागजपत्र चिठीपत्र ताहा मध्य सेतिकी गुरुत्वपूर्ण. It is the sacred duty of the historian to go through both government and private records. So, the historian here plays a vital role in writing history. He never depends only one source, that is the private papers or personal letters. He has to depend upon the government records also. So, it is the sacred duty of the historian to go through both government and private records of a particular period to know the truth, so that proper balance can be maintained. In order to maintain a proper balance, he had to give justice. So, this is very essential, especially for writing the history of British period. So, private and personal papers, they helps a lot to write the history of the British period. There are so many freedom fighters. They have contributed a lot to achieve independence, and they have narrated the incidents which they faced during the freedom struggle in their personal letters, in their private papers, personal papers. So, when we go through the personal papers which were written by the then freedom fighters, we know about that situation which period shows the British oppression and the policies followed by the freedom fighters during the Gandhian era, during the mass movement, during the Quit India movement period. So, we got the authentic materials from the archival sources. The personal papers of the Governor Generals and Viceroys like Hardinge, Lord Dufferin, Lord Ripon, Lord Curzon, Lord Montagu, Lord Mountbatten and others are available there. So, the personal letters of the Governor Generals during the British colonial rule and also during the imperial ruling period, British imperial rule, we got
a lots of information regarding the British rule, regarding the then social condition, the economic condition, the political condition. So, we write a very impressive history. Archives, they provide us information regarding the economic condition of India during the period of British rule, and the personal papers of the governor generals also provides us information regarding their policies which they followed in order to extend the British rule in India and for the betterment of the Britishers. So, now their papers are available in the form of microfilms in the National Archives, New Delhi. So, all these papers of the Governor Generals like Lord Hardinge, Lord Dufferin, Lord Mountbatten, Lord Montagu, etc. This can be found, or these are available in the form of microfilms. So, in the National Archives, New Delhi, Nua Delhi रे अभिलेखागार जो जातीय अभिलेखागार अच्छी सेठारे आमको गवर्नर जनरल मानकर तांकर व्यक्तिगत चिठी पत्र पर्सनल पेपर्स व्यक्तिगत कागज पत्र रु बहुत तथ्य मिली थाए जहा कि सही समय सामाजिक व्यवस्था, अर्थनैतिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था विषय रे बहुत तथ्य प्रदान करी थाए. The diaries of several freedom fighters, revolutionaries, government servants, rulers, jamindars and others help to reconstruct the history of India. जेतेबेले भारतर इतिहास को आमे लेखुछु, भारतर इतिहास संबंध रे आमे कोनोसी तथ्य प्रदान करिबा को जाउछु, सेही समय रे ऐतिहासिक माने विभिन्न स्वाधीनता संग्रामी विप्लवी मानकर तांकर व्यक्तिगत चिठी पत्र से मानकर व्यक्तिगत लेखा को अधिक गुरुत्व दे थांती, कारण ताहा सठिक तथ्य प्रदान करि थाए. एथिरे कोनोसी प्रकार रो अवास्तव जिनिस अवास्तव लेखा प्रकाशित होई न थाए एवं एहा विश्वसनीय, रिलायबल एंड ऑथेंटिक and also primary source. This is one of the primary source. Then the records of mathas, temples, mosques and churches, they throw light on the then rites and rituals, then governmental and non-governmental attitudes, public relations etc. भारतर विभिन्न स्थान रे बहुत मठ मंदिर सब प्रतिष्ठा करा जाइथिला. सेही मठ मंदिर मानकरे, मस्जिद मानकरे एवं चर्च मानकरे अनेक लेखा सब रही बा अनेक लिखित तथ्य मिली थाए. से तथ्य सबू आर्काइव्स रे संग्रहित करी रखा जाइछि बा अभिलेखागार गुड़िक संग्रहित करी रखा जाइछि. ताहा सेही समयर प्रथा परंपरा उपरे गुरुत्व प्रदान करथे. दक्षिण भारतर मंदिर मानकरे जो देवदासी प्रथा हेउ कि विभिन्न प्रकार सेही समयर धार्मिक अनुष्ठान गुड़िकरे जो परंपरा प्रथा पूजा पद्धति बा धार्मिक विश्वास रही थिला, धर्म को आधार करी सामाजिक व्यवस्था गढ़ी उठिथिला, से सबु विषय रे तथ्य हासिल करिबा पई अभिलेखागार गुड़िकरे अनेक तथ्य अवेलेबल अच्छी बा से सबु पाई हेबो से सब स्थान गुड़िकर. Then personal papers are also preserved in Commonwealth Relations Office Library at London. Then I am going to discuss about the newspapers and periodicals. संवाद पत्र एवं periodicals जो मैगजीन सब रही यह को समाजर मुकुर कहा जाई थाए, कारण यह समाजर घटुथिबा समस्त घटनावली को सठिक भाव में उपस्थापना करि थाए संवाद पत्र.
तो सही समय समसामयिक संवादपत्र गुड़िक भारतर सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक प्रशासनिक एवं धार्मिक व्यवस्था को उल्लेख करथिला। स्वाधीनता संग्रामी मानकर जो चिंताधारा रही ब्रिटिश सरकार को प्रति ताहा मध्य संवादपत्र गुड़िकर प्रतिफलित होता। विभिन्न प्रकार इंग्रेजी संवादपत्र एवं आंचलिक भाषा रे लिखित संवादपत्र गुड़िक इंग्रेज सरकार दमनमूलक नीति सेमानंकर कठोर पदक्षेप ए सबू को वर्णना करिथिला। सही समय रे देशवासी मध्य जातीयतावादर वृद्धि रे संवादपत्र गुड़िक ही सहायक होइथिला। जातीयतावाद सृष्टि हेबारे संवादपत्र प्रमुख भूमिका रही जहाँकि भारतीय माननको स्वाधीनता आनी देबारे सहायक होइथिला। तो से जातीयतावादर विकास केवल इंग्रेज शासन समय रे ही सृष्टि होई परिथिला और संवादपत्र एथिरे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिला। एहा आर्काइव्स रो बा आर्काइव्स एक प्राइमरी सोर्स बा प्राथमिक उच्च भाव रे विभिन्न तथ्य प्रदान करिथाय। The newspapers and periodicals, they are also vital for writing history. So historians gather data from the news and accounts published in contemporary newspapers and periodicals which are available in archives. अभिलेखागार रे विभिन्न संवाद को ऐतिहासिक माने एकत्रित करिथांती। संवादपत्र मुख्य भूमिका हेउछि बा मुख्य दायित्व हेउछि समाज रे सत्य रो प्रतिष्ठा करिबा बा सत्य खबर को लोक मानक निकट रे पहुंचाइबा। तो इंग्रेज शासन समय रे संवादपत्र गुड़िक इंग्रेज मानकर दमनमूलक शोषण मूलक शासन ए सबु विषय रे सत्यता प्रतिपादन करथिले एवं माने प्रकृत तथ्य लोक मानक निकट रे पहुंचाई पारिथिले। सेही संवादपत्र गुड़िक विभिन्न आंचलिक भाषा रे प्रकाशित होइथिला ता सहित इंग्राजी भाषा रे मध्य प्रकाशित होइथिला जहाँकि अभिलेखागार गुड़िक संग्रहित करी रखा जाइछि। So the national newspapers of pre-independence period like अमृत बाजार पत्रिका, युगांतर, हिंदू पैट्रियट एक्सेट्रा जातीय संवादपत्र गुड़िक जहाँकि स्वाधीनता पूर्वरु प्रकाशित हेउथिला ताहा थिला अमृत बाजार पत्रिका, युगांतर, हिंदू पैट्रियट एक्सेट्रा। एथिरे स्वाधीनता संग्राम को नहीं बहुत तथ्य प्रकाशित होउथिला। इंग्रेज मानक विषय में बहुत तथ्य प्रकाशित होउथिला। इंग्रेज मानक द्वारा प्रचलित आईन नियम कानून सेमानकर दंडविधि आईन से सब विषय में संवादपत्र गुड़िक प्रकाशित करा जाउथिला। से घटनावली गुड़िक प्रकाशित करा जाउथिला। देन द ओडिया न्यूज पेपर्स वेयर उत्कल दीपिका, आशा, नवीन, समाज, दे आर प्रेसियस ट्रेजरर्स। जदि आमे आधुनिक इतिहास लेखिबा ऐतिहासिक मानकु बा आधुनिक इतिहास विषय सविशेष विवरणी पाइबा पई संवादपत्र एक उत्कृष्ट माध्यम। संवादपत्रु सत्यता बहु अनेकांश मिली थाए। से समयर समसामयिक घटनावली गुड़ी को सांबादिक माने स्वाधीनता संग्रामी माने ताहाकु प्रकाशित करथिले। तांकर विभिन्न संवादपत्र गुड़ी उत्कल दीपिका हेउ कि समाज हेउ सेथिरे
से समयर समसामयिक घटनावली गुड़ी को निच्छक भाव में ताहाकू चित्रित करा जायछि, जहाकू कि अभिलेखागार गुड़िकर संगृहित कर रखा जायछि एवं ताहा हेउछि एक ट्रेजर, दीज आर द ट्रेजरस, आर्काइव्स आर द ट्रेजरस. सो पीरियडिकल्स आर एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू, बनारस अखबार, सेंट्रल एशियन रिव्यू, देयर हिस्टोरिकल वैल्यू, जहाँ कि ऐतिहासिक महत्व रही. सबू मैगजीन गुड़िकर संवादपत्र गुड़िकर बहुत महत्व रही. सो ऑल दिस न्यूज पेपर्स एंड पीरियडिकल्स दे हैव बीन प्रिजर्व्ड इन आर्काइव्स. अभिलेखागार को जदि कौनसी भी व्यक्ति जानती से माने सेठारे विभिन्न प्रकार संवादपत्र विभिन्न माने प्राक स्वाधीनता समय ठू आरंभ करी ए पर्यंत जहाँ भी सब तथ्य सब रही ताहा सेठारे ही पाई हेबो अभिलेखागार गुड़िकर. आर्काइव्स दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द इनफॉरमेशन, हिस्टोरिकल इनफॉरमेशंस, ऐतिहासिक घटनावली गुड़िकर स्टोर हाउस कहले अत्युक्ति हेब नहीं. एवं संवादपत्र एवं मैगजीन गुड़िक सठिक तथ्य प्रदान करुथिबारु एहा उपरे अधिक गुरुत्व ऐतिहासिक माने एथिपाई देई थांते जेहेतु एहा सठिक तथ्य प्रदान करि थाए. सेही समसामयिक घटनावली गुड़िक निश्चक भाव में एहाकू से माने ताको लिखि थांती बा ताहाकू प्रदर्शित से संवादपत्र माध्यम ही करि थांती से घटना गुड़िक. सो दे आर मोर डिपेंडेबल, से अधिक निर्भर, यह निर्भरयोग्य एवं विश्वसनीय संवादपत्र एवं मैगजीन गुड़िक. सो पर्सनल रिकॉर्ड्स, रॉयल करेस्पॉन्डेंसेस, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, पुलिस रिकॉर्ड्स, दे आर वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग हिस्ट्री. इतिहास लेखापाई व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स बा पर्सनल रिकॉर्ड्स, रॉयल करेस्पॉन्डेंसेस, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, पुलिस रिकॉर्ड्स ये सब अधिक सहायता करि थांती. भारत रे आर्काइव्स जो प्रथमे प्रतिष्ठा करागला नेशनल आर्काइव्स, यह एक जुगान्तकारी पदक्षेप थिला. ऐतिहासिक माने आधुनिक भारतीय इतिहास रचना करिबा पई आर्काइव्स को एक निर्भरयोग्य विश्वसनीय माध्यम भाव ग्रहण करि थांती. एवं आर्काइव्स रे मध्य बहुत तथ्य रही, जहादी आम देखिए वैदेशिक विवरणी जो माने सब विभिन्न पुस्तक लिखिं सब ऑटोबायोग्राफी गुड़िक सब रही. ऑटोबायोग्राफी रु मध्य बहु तथ्य इतिहास रचना पाई सहायक होता है. तो साहित्यिक उत्स, प्रत्नतात्विक उत्स एवं अभिलेखागारीय उत्स, ए तीनिटी उत्स मध्यरु अभिलेखागारीय उत्स को अधिक गुरुत्व एथिपाई प्रदान करा जायछि जे आधुनिक भारतीय इतिहास रचना करिबारे एहा सहायक होइथाय. एवं अभिलेखागारीय उपादान जहा कि सरकारी नथिपत्र हेउ, व्यक्तिगत घटनावली, व्यक्तिगत चिठीपत्र रु हेउ, ए सबुथिरु प्राप्त करा जाई थाई पारि थाई. एवं संवादपत्र ओ मैगजीन ए सबु मध्य अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करि थांती. ताले अभिलेखागारीय उपादान भारत इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास लेखिबारे संपूर्ण भाव में सहायक होइथाय. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेन अकाउंट्स, वैदेशिक विवरणी. तो फर्स्ट चैप्टर रो प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान, अभिलेखागारीय उपादान, तीन उपादान रही फर्स्ट चैप्टर रे. तो सेथिरु
प्रत्येक गुरुत्व रही इतिहास रचना करिबारे अभिलेखागारीय उपादान एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सोर्स बिकॉज the period, the British ruling period, that the history of that period is available in archives. The great persons, the great historians, they have contributed a lot for the achievement of independence. During the period of the British rule, India faced a lot of difficulties in the economic situation. आर्काइव्स रे बा अभिलेखागार रे आर्काइव्स रे विभिन्न प्रकार तथ्य मिली थाए. प्रशासनिक तथ्य बा एडमिनिस्ट्रेटिव इनफॉरमेशंस, सोशल इनफॉरमेशंस, रिलीजियस इनफॉरमेशंस, जहाँ को कि विभिन्न भाग रे विभक्त करा जाइछि. अभिलेखागारी उपादान गुडी को विभिन्न भाग विभक्त करा जेपरि प्रशासनिक व्यवस्था विषय रे जानिबा को हेले तो प्रशासनिक तथ्य गुडी को ऊपर प्रशासन तथ्य गुडी को प्रदान करि थाए. तो अभिलेखागारीय उपादान भारत इतिहास रचना रे समृद्ध सहायक होइछि. तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेन अकाउंट्स. वैदेशिक विवरणी जहाँ को आम कहूचे फॉरेन अकाउंट्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन एंशिएंट पीरियड, इन medieval period and also in modern period. There are so many foreign travelers, they visited India, they experienced about the society, polity, economy and religious conditions of India, and they narrated them in their writings. They also wrote books on India. That helps a lot to grab informations, to get informations from these sources in order to write one of the most powerful history. So, these foreigners, they have provided us a lot of information, historical informations in their writings. So, during ancient period, the Greeks, the Greek historians, the Chinese historians or the Chinese scholars, they visited India and provides us a lot of vital information regarding our Indian culture, Indian society and the then existing administrative situation of India. And also during the medieval age, the authentic informations regarding the ruling period of Delhi Sultans and the Mughal period also found from the foreigners or foreign travelers. And during the British period, British ruling period or during the modern Indian period, there are so many foreigners, they visited India and they narrated about Indian conditions. So, the foreign accounts, they are one of the most vital source to know about our ancient past. So, the foreign travelers, then what is foreign accounts? So, first of all we should know about the foreign accounts. What is foreign accounts? The foreign travelers, the tourists, the scholars and pandits who came to India at different phases of history have recorded their experiences. These accounts are of historical importance as they throw light on contemporary period. जदियो हेरोडोटस भारत को आसी नथिले किंतु से विभिन्न तथ्य अन्य मानक ठारु सुनी भारत विषय से रचना करथिले. आरियन, स्ट्राबो, प्लिनी, they have written they have provided a lot of historical information regarding India.
Megasthenes, he also provides vital informations regarding the ancient ruling period of the Mauryans. Megasthenes wrote Indica. So, there are so many historical informations provided by the foreign travelers that helps us to know about our ancient past culture. Buddhist religion, which is one of the most ancient missionary religion of the world, we know this from the accounts provided by Fahian and Huinsang. Huinsang was a Buddhist scholar and he had provided a lot of information regarding Buddhism, regarding the educational system of India during that period, and also about the religious condition of Buddhism, specifically Buddhism. So, these foreign travelers, they have provided a lot of vital information regarding our ancient past. So, विदेशी परिव्राजक माने विभिन्न विद्वान माने पंडित माने माने भारत परिभ्रमण आसीथिले से माने भारत विषय रे बहुत तथ्य प्रदान करिसंती। सेमानंकर लेखा रु आमे बहुत ऐतिहासिक तथ्य आम भारतर अतीतर गौरव ऐतिह्य परंपरा ए सब विषय रे सेमानंकर लेखारु ही अवगत होई थाउ। हुएनसांग, फाहियन, मेगास्थेनिस, Alberoni, Francois Bornier, they have provided lots of information regarding our ancient past. So, we have divided the foreign accounts into three parts: ancient foreign accounts, medieval foreign accounts and modern foreign accounts. The ancient foreign accounts बा प्राचीन भारत परिभ्रमण रे आसीथिबा वैदेशिक परिव्राजक माने से माने भारत विषय रे सविशेष तथ्य प्रदान करिसेंती। भारतर सामाजिक व्यवस्था, अर्थनीति, राजनीति एवं धार्मिक व्यवस्था विषय रे से माने तांकर लेखा गुडी करे आलोचना करिसेंती। Ancient period which is known as the ruling period of Indian kings, से समय रे भारतर राजा माने शासन करते, भारत राजा मानेकर शासन थिला। And ancient period which is known as the Hindu period by some historians, किछि ऐतिहासिक मानक मतरे प्राचीन भारत इतिहास हेउछि हिंदू मानकर इतिहास, हिंदू राजा मानकर इतिहास। मेडिएवल पीरियड बा मध्ययुगीय भारत इतिहास जहाँ को कहा जाए इस्लामिक हिस्ट्री, दिल्ली रे सुल्तान माने शासन करथिले, मोगल माने शासन करथिले। एवं मॉडर्न पीरियड जो आधुनिक भारत इतिहास जहाँ होची ब्रिटिश मानकर शासन समय, इंग्रेज माने सेमानक शासन प्रतिष्ठा कले एवं बहु वर्ष धरी शह शह वर्ष धरी शासन कले। तो ए तीन समय रे भारतर इतिहास को तीन भाग विभक्त कर, प्राचीन भारत इतिहास, मध्ययुगीय इतिहास एवं आधुनिक भारत इतिहास। तो प्राचीन भारत इतिहास समय प्राचीन भारतीय मानकर इतिहास जदि आमे देखिबा से समय रे मध्य बहु विदेशी परिव्राजक भारत परिभ्रमण रे आसीथिले। से माने भारत विषय सविशेष तथ्य से माने प्रदान करछन तांकर लेखा माध्यम रे। तो प्रथमे ग्रीक मानकर इतिहास लेखा बा ग्रीक मान कह जाए, ग्रीक हेरोडोटस इतिहास जनक कह जाए। तो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस had highlighted Indo-Persian relations in 5th century BC.
ଖ୍ରୀଷ୍ଟपूର୍ବ 500 भारत पारस्य संपर्क विषय रे हेरोडोटस तांको लेखारे विभिन्न तथ्य प्रदान करिसेंती। देन Arian had written Alexander's invasion of India। ग्रीक ऐतिहासिक आर्यन से अलेक्जेंडर कर भारत आक्रमण विषय रे सविशेष तथ्य प्रदान करिसेन। ही हैड रिटेन Alexander's invasion of India, collecting information from commander Nearchus। से नियरकस को ठारू विभिन्न तथ्य संग्रह करी भारत इतिहास विषय सविशेष तथ्य प्रदान करिसेंती। He has referred to the defeat of Greek commander by Chandragupta Maurya and about 3 ambassadors, Megasthenes, Dionysius and Deimachus, who were sent to Mauryan royal court। चंद्रगुप्त मौर्य को द्वारा ग्रीक कमांडर बा ग्रीक सेनापति परास्त हेबा विषय रे से अवगत करिसेंती। डायोनिसियस, मेगास्थेनिस एवं डेमाकस एही राष्ट्रदूत मानक विषय मध्य मौर्य मानकर राजदरबार रे सेमानकर उपस्थिति विषय मध्य से वर्णना करिसेंती। मेगास्थेनिस stayed in India from 302 BC to 298 BC। 302 ख्रीष्टपूर्व 298 ख्रीष्टपूर्व पर्यंत मेगास्थेनिस भारत रे रहिथिले and recorded his experiences in the book इंडिका। ताको पुस्तक इंडिका रे से सब विषय रे वर्णना करछंती। इंडिका नामक पुस्तक रचना करथिले से। His writings center around the Mauryan capital पाटलिपुत्र, its administration, its social life, which are essential for the compilation of the Mauryan history। तरे मौर्य मानकर शासन प्रणाली विषय से बहुत सविशेष तथ्य से प्रदान करिसेंती। देन Ptolemy's geography written in 2nd century AD focuses on Indian historical geography। भारतर ऐतिहासिक भौगोलिक विस्तृति विषय रे यह अनेक तथ्य प्रदान करि थाए। Ancient Chinese travelers like Fahian, Huinsang and Ising, they have also provided lots of information। Huinsang भारत रे बौद्ध धर्मर अवस्थिति, बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार विषय मध्य सविशेष तथ्य प्रदान करिसेंती। एंड फाहियनकर तांकर मध्य बहुत तथ्य से प्रदान करिसेंती। से द्वितीय चंद्रगुप्त समय बहुत तथ्य प्रदान करिसेंती। इन 7th century AD हुएनसांग अराइव्ड इन इंडिया। 700 ख्रीष्टाब्द रे हुएनसांग भारत रे से पहुंची थिले। He is popularly known as Prince of Pilgrims। He spent long 14 years from 630 to 644 AD। 630 रु 644 ख्रीष्टाब्द पर्यंत हुएनसांग भारत रे रहिथिले। and his Indian experiences are recorded in C.U. Key। तांकर पुस्तक रहिथिला C.U. Key। C.U. Key पुस्तक रे से भारत विषय रे सविशेष तथ्य प्रदान करिसेंती। मध्ययुगीय इतिहास रे बहुत इस्लामिक फॉलोअर्स माने जो माने सब इस्लाम धर्मर अनुसरण करथिले से माने मध्य भारत परिभ्रमण रे आसीथिले। तो बहुत ऐतिहासिक पुस्तक इबन बतुता, आल्बेरुनी एमाने भारत इतिहास संबंध रे सविशेष तथ्य प्रदान करिसेंती। भारतर गणितिक ज्ञान, विज्ञान संबंधी ज्ञान सारा विश्व रे प्रसारित होइथिला इस्लामिक इस्लाम धर्मावलंबी परिव्राजक मानक द्वारा। आधुनिक जुगरे फ्रांकोइस बर्नियर से मते जने विदेशी परिव्राजक थिले। से भारत परिभ्रमण रे आसीथिले
एवं भारत विषय रे सविशेष तथ्य प्रदान करिसेंती। तो वैदेशिक विवरणी भारत इतिहास लेखारे संपूर्ण भावरे एक गुरुत्वपूर्ण अंश भावरे ग्रहण करा जाइछि। तो वैदेशिक विवरणी जहाँकि भारतर इतिहास को लेखा को अधिक पृष्ठपोषकता प्रदान करिछि। सेमानकर लेखा बा प्रत्नतात्विक उत्स, साहित्यिक उत्स एवं अभिलेखागारी उत्स, एही तीनिटी उत्स भारतीय इतिहास रचना करिबारे सहायक होइछि एवं प्रत्येक उत्सर गुरुत्व रहिछि। प्रत्नतात्विक उपादान माध्यम रे आमे भारतर जहाँ आम अतीतर गौरव हरप्पा सभ्यतार पुनरुद्धार संभव हो पारिथिला एवं हरप्पा सभ्यता जोगु आमर भारतीय मानकर गौरव सारा विश्व रे प्रतिपादित हो पारिछि। एवं साहित्यिक उपादान जहाँ वैदिक सभ्यता उपरे गुरुत्व प्रदान करिछि एवं अभिलेखागारी उपादान आधुनिक भारत इतिहास लेखिबारे सहायक होइछि। So all these sources helps a lot in writing one of the most powerful history of the Indians, and all these sources, archaeological sources, literary sources and archival sources, helped a lot for writing Indian history. So this is all the information about archival sources for an accounts. Thank you.